I thank God for what we heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज हमने जो सुना उसके लिए। Uh, it's I think that we hear certain things. It is to see ourselves. Like we stand in front of, as the Bible says, we stand in front of a mirror and we observe. What is the situation is. और कई बार जब हम कुछ बातों को सुनते हैं तो ये बिल्कुल उस प्रकार है जो बाइबल में भी बताया गया है कि हम एक आईने के समान ये देखते हैं कि हमारी परिस्थिति कैसी है। Am I really, listening and obeying, or I'm just listening and the birds of the air take it away? क्या मैं सचमुच सुन रहा हूँ और उस वचन का मेरे जीवन में कुछ लाभ हो रहा है, या ऐसा ही वो आकाश की पक्षियां उन वचनों को छीन ले रहे हैं। See, normally when you see a person who is put on a lot of weight and he exercises, you see the difference. आमतौर पर हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति काफी मोटा है, वो बहुत एक्सरसाइज करता है और उसके बाद हम उसमें एक बदलाव देख पाते हैं। Because he wants to reduce his weight and he works on it, and there's a difference in when you see him. क्योंकि वो अपना वजन घटाना चाहता है, इसलिए वो काफी कसरत करता है और हम उसमें एक बदलाव देख पाते हैं। Same way when we really want to have that life of Christ and we really are afraid, God will help us to work on it. There's a difference in our lives. और वैसे ही जब हम सचमुच एक इच्छा रखते हैं कि मसीह का जीवन हमारे अंदर हो, तो परमेश्वर हमारे अंदर इस प्रकार काम कर सकता है कि सचमुच हमारा जीवन बदल जाए। Like God says, you're a light set on the hill. People can see that. और जैसे यीशु मसीह ने भी कहा, तुम एक ऐसी ज्योति हो जिसको सबके सामने रखा गया है ताकि लोग उसको देख पाए। You are the salt of the earth. It's that taste that comes. The taste of Christ will come to you. तुम इस संसार के नमक हो, तुम्हारे द्वारा मसीह का एक लोगों को मसीह चख पाना चाहिए। So the two things, the difference that makes one is the light of Christ and the taste of Christ. और दो बातें हैं, एक है मसीह की ज्योति और दूसरा है मसीह का स्वाद। Reading this part about in 2 Samuel, I was reading this part about there's a place where David wants to build a temple for God. और मैं दूसरे शमूएल में पढ़ रहा था एक जगह जहां दाऊद के मन में एक इच्छा है कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर, एक भवन बनाए। It says if you read a chapter 2 Samuel chapter 7 and verse 1 onward, it says that when David had some relief from all his enemies around, then he thought of I'm living in a fancy house, so I want to make house for God. और दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 1 से आगे अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कि जब यहोवा ने उसको चारों ओर सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा कहता है कि देखो, मैं तो इतने बड़े विशाल घर में रहता हूँ और मैं परमेश्वर के लिए भी एक घर बनाना चाहता हूँ। And that is the time when God tells Nathan to go and speak to David. और उस समय परमेश्वर नातान से कहता है कि वो जाकर दाऊद से बात करे। There's one thing that really touched my heart is when it says, I am reading the ERV version. और यहाँ एक बात है जिसने सचमुच मेरे हृदय को छू ली। It says when you read verse 5, it says, go and tell your servant David, this is what the Lord says, you are not the one to build a house to live for me to live in. I did not live in a house. At that time I took the Israelites out of Egypt. और 5 और 6 वचन में लिखा है, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। And 7 verses, I never told any of the tribes of Israel to build me a fancy house made of cedar wood. और मैंने इसराइलियों के बीच किसी भी गोत्र से ये नहीं कहा कि मेरे लिए कोई देवदारू का घर बनाया जाए। God was there with them all the time. When the Israelites came out of Egypt, God did a lot of work, and He was with them. He was not away from them. He was with them every time. और यहाँ लिखा है, परमेश्वर जो इसराइलियों के बीच फिरता था जब से वो लोग मिस्र देश से आए थे, परमेश्वर उनसे दूर नहीं रहा, बल्कि उनके बीच वो रहने वाला परमेश्वर था। And he says, God says, I was around the tent. And second thing is, he never said anything, I want this and all that. Everything was, but he was always there to help them. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर था जो उनके बीच में रहता था और उसने कभी उनसे कोई मांग नहीं की कि मेरे लिए ये बनाओ या वो बनाओ।
But says, but we see the other part, when we read certain parts, but the people of Israel, they complained, पर हम बाइबल में अन्य जगह पढ़ते हैं कि इसके बावजूद इस्राएली लोगों ने शिकायत की। want food, good food, we want, the water and all those things. हमें अच्छा भोजन चाहिए, पानी चाहिए और वो सारी बातें। So, I can be the same person like Israel. I can be worse than those people of Israel. और मैं बिल्कुल उन्हीं इस्राएली लोगों के जैसा हो सकता हूँ, बल्कि उन इस्राएली लोगों से बदतर और बुरा मैं हो सकता हूँ। I can, God can be beside me. I can see He's working in my life. He's being, always with me. मैं देख सकता हूँ परमेश्वर मेरे साथ रहा है, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और हर समय वो मेरे साथ रहा है। But still, if I complain and still if I'm grumbling, और उसके बावजूद अगर मैं शिकायत करता हूँ, कुड़कुड़ाहट करता हूँ, I go to some wrong ways. और मैं कोई गलत मार्गों के पीछे जाता हूँ, There's something really wrong with me. My तो life is फिर not good. मेरे जीवन में वाकई में कुछ गलत है, मेरा जीवन सही नहीं है। I have to go and repent and ask God for mercy. मुझे जाकर मन फिराने की जरूरत है और परमेश्वर से दया मांगने की जरूरत है। If you go a little ahead, it says, God speaks to David. It says, it's God who chose him for the job. It says he made David the leader. और आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर दाऊद से कहता है कि मैंने तुझे इस काम के लिए चुना। परमेश्वर ने दाऊद को एक उसके लोगों का अगुवा कर नियुक्त किया था। And he's saying all the battles God fought for him. He didn't fight a battle, but God fought all those battles for him. और सारी जो लड़ाइयां थी, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उसके लिए लड़ता था, वो खुद नहीं लड़ा बल्कि परमेश्वर उसके लिए लड़ा। So and if you read that verse, the last verse, it says, I am giving you peace from all your enemies. This, from all the troubles, He is giving the one who gives peace in the hearts. और आखिरी उसी वचन में आगे ये भी लिखा है कि मैं हूं जिसने चारों ओर तुझे शांति दी है, और परमेश्वर ही है जो हमारे हृदयों में शांति देता है। Like first says, God never asks anything from us. I want this now. The second thing is all our battles, everything, God fights for us. We do nothing, and that peace that comes in the heart is also from God. It's nothing that we can generate. Like, और मैं सोच रहा था कि पहले तो परमेश्वर हमसे ज्यादा कोई मांगे नहीं रखता, दूसरी हमारी सारी लड़ाइयां जो है परमेश्वर खुद लड़ता है, हमें नहीं कहता है कि लड़ना है। और तीसरा, वो जो शांति जो हमारे मन में है वो परमेश्वर देता है, वो ऐसी शांति नहीं है जिसको हम अपने आप से उत्पन्न कर पाए। so the only thing about God, that we read the Bible, the main thing we read God wants us first is we trust in Him and obey the things that He tells us. और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो सबसे मुख्य बात हम यही पाते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञाएं माने। There are many things. I remember like last 20-25 years, more than that. We're listening to many verses, many things, but it's not about listening certain verses, but it's working on it and obeying those things. और मैं देखता हूँ पिछले 20-25 वर्षों में मैंने काफी कुछ सुना है, काफी वचन सुना है, पर ये जरूरी नहीं कि हमने कितने वचन सुने हैं, बल्कि उन वचनों में कितना हमने उसके आज्ञाओं को माना है। When I really listen and obey, then that works. God can start that work in my heart. जब मैं सचमुच सुनता हूँ और आज्ञा मानता हूँ, उसके बाद परमेश्वर मेरे जीवन में एक कार्य शुरू कर सकता है। When God works in our lives, He works to perfection. जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है तो वही उस कार्य को सिद्ध भी करता है। This verse is there when God says about He not building the temple, but Solomon building for his son, building for him. और एक वचन है जहां लिखा है कि परमेश्वर दाऊद से कहता है कि तू इस मंदिर को नहीं बनाएगा बल्कि सुलेमान इस मंदिर को बनाएगा। But he says certain one. Just let me go to the verse. पर उसके बावजूद वो कुछ वचन में कहता है, It says he gives him promises about things. I will be. We read verse number 14. He says, "I will be his father; he will be my son." और 14 वचन में परमेश्वर एक वायदा देता है, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। When he sins, I will use other people to punish him. यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से ताड़ना दूंगा। They will be my whips. और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा।
And verse 15 says, but I will never stop loving him. I will continue to be loyal to him. और 15 वचन में लिखा है, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी. It says, no, it says, no, Solomon will build a temple for me, but one thing, I will discipline his life. That is what he says. और यहाँ लिखा है कि सुलेमान है जो है वो मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा, पर मैं उसके जीवन को अनुशासित करूंगा, उसे ताड़ना भी दूंगा. And one thing he says, he'll never stop loving him. और एक बात प्रभु कहता है, मैं कभी उस पर करुणा करने से न हटूंगा. इंग्लिश में लिखा है, मैं कभी उससे प्रेम नहीं करना छोड़ूंगा. Same thing in our life. God will do a work in our lives. He will discipline us. और वैसा ही हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर कार्य करता है तो वो हमें अनुशासित करेगा, हमें ताड़ना देगा. There are situations coming in our life when people trouble us, certain things happen. We want many things, but those don't happen. But God allows those things in our life that our lives will be disciplined. ऐसी परिस्थिति आती है जहां लोग हमें सताते हैं, लोग हमें तकलीफ देते हैं, पर इन सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर हमें अनुशासित कर रहा है. There's one that peace comes in our heart, that God is in control of all things. ये एक शांति मेरे मन में आती है कि परमेश्वर सारे बातों के नियंत्रण में है. Really, God help us that we really seek more of the Holy Spirit and really seek more to live our lives according to the will of God. और परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे कि हम वाकई में पवित्र आत्मा की खोजी बने और अपने जीवन को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करें. The more important thing is, the more I spend my time with God, the more I'll come to know about Him and His plans for my life. जितना अधिक मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, उतना अधिक उसके मेरे जीवन के लिए जो योजनाएं हैं उनको मैं जान पाऊंगा. God wants that the same life that Christ had to be in us, so we may also have the same. और परमेश्वर चाहता है कि वही जीवन जो मसीह का था, वही जीवन हमारे अंदर भी हो. May God really help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. एक वचन जो पिछले दिनों में मुझे प्रोत्साहित किया, वो इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन से आगे. इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12 वचन से आगे वहाँ लिखा है कि हम लोग जो है मसीह से अलग थे, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे. और 13 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए. और 14 वचन में, वही हमारे मेल जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया. इस वचन से एक चीज जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित की, 12 वचन में बार बार हम अलग लोग थे, इस्राएल के पद से अलग थे, मसीह से अलग थे, प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे, जिससे कि हम वंचित थे बहुत सारी चीज़ों से जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता था, देना चाहता था. लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा 13 वचन में ये वचन मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया कि अब हम उसके लहू के द्वारा निकट किए गए हैं और जो अलग करने वाली दीवार जो है हमारे बीच में से ढा दी गई है. और मैं इतना प्रभु का धन्यवाद मैं करता हूँ कि परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य हमारे लिए, मेरे लिए किया है. मैं देख पा रहा था कि वो मुझे उस स्वर्गीय बातों के निकट लेकर आया है और वो अलग करने वाली दीवार जो है यीशु मसीह के द्वारा उसने ढा दी है. और मैं देख रहा था कि जैसे कि परमेश्वर मुझे उस स्वर्गीय बातों की ओर निकट लेकर आया है, दीवार को दूर कर दिया है. कई बार मैं उसके करीब नहीं जा पा रहा हूँ. कहीं ना कहीं मैं अपने उन बातों के अंदर ही मैं देख पा रहा हूँ अपने जीवन को. और इस बात को मैं बहुत ही प्रोत्साहन के साथ मैं अपने आप के लिए और सभी के लिए कि अब हमारे लिए वो स्वर्गीय अनुभव, वो दैनिक परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का जीवन हमारे लिए निकट है. वो दीवार अब पूरी तरह से ढा दी गई है, हमें केवल प्रतिदिन उसके पास में जाना है. ये वचन से मुझे प्रोत्साहन किया कि वो बीच में से यदि दीवार हट गई है, प्रतिदिन मुझे उस अनुभव के अंदर जीना है. अब वो निकटता यीशु मसीह पर पिता के साथ में लेकर आया. और एक वचन जो है इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है. मैं इस वचन को ले रहा था कि ऐसा बड़ा कार्य जो करने वाला है, वो कार्य क्या है. और वो वचन लिखा है कि 18 और 19 वचन में उसी अध्याय में लिखा है कि हम भली भांति उस समझने की शक्ति पाए और उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है. और 19 वचन ने बहुत ही मुझे प्रोत्साहित किया कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है,
कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यही परमेश्वर 19 वचन से हमको सभी को प्रोत्साहित करना चाहता है कि एक ही इच्छा और चाहत को हम इन दिनों के अंदर रखें कि प्रभु मैं उस प्रेम को और अधिक जानना चाहता हूँ। उस प्रेम से मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु भरना चाहता हूँ मेरे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए, पूरी तरह से उस भरपूरी में आ जाए। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस उत्तम वचनों के लिए कि परमेश्वर बार बार उसके प्रेम को जानने के लिए, चखने के लिए वो दीवार गिर चुकी है, वो हमें ऑलरेडी उसके निकट लेकर आया ताकि हम जान सके। वो नाम लेकर बुलाता है कि किरण और भी तू मेरे प्रेम को गहराई से जान सकता है। अब वो दीवार, वो बाधा, वो ऑब्स्टेकल पूरी तरह से दूर हो चुका है। अब तुझे केवल मुझे प्रतिदिन मैं उसको खोज सकता हूँ, ताकि मैं एक ही चीज कर सकूं, प्रतिदिन परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। यही परिपूर्णता एक मसीही जीवन है, यही भरपूरी का जीवन हमारे आत्मिक जीवन का रहस्य है। मैं आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि इस 19 वचन को हम सब लोग हमारे जीवन के अंदर खोजे, उस प्रेम को हम जान सके मसीह के प्रेम से, और जो समझ से ज्ञान से परे है, और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम प्रतिदिन परिपूर्ण होते जाएं। आमीन। ब्रदर, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा था कि जब हम संदेश देते हैं और जो भी हमारे भाई संदेश देते हैं, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक दूसरे के विश्वास से हम हर एक को प्रोत्साहित करें। तो कितना 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 अच्छा वचन है ये कि हम हमारा एक दूसरे का विश्वास हम एक दूसरे से बांटे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। तो हमारे संदेश का यही उद्देश्य होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भाई डैनी मत्ती 7:7 जब बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे जीवन में हमारे पास आज अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक हम महसूस नहीं कर रहे, हमारे पास वो अभिषेक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक मांगा नहीं है। जैसा मत्ती 7:7 में लिखा है, हमने वो अभिषेक अभी तक मांगा नहीं है, या फिर हमने वो अभिषेक को ढूंढा नहीं है, या फिर हो सकता है कि अभी तक वो परमेश्वर का द्वार जो है वो ठकठकाया नहीं है। तो उस समय मुझे एक बात रिवील हुई, मेरे समझ में एक बात आई, क्योंकि क्या होता था कि आज तक मैं ये समझ रहा था कि परमेश्वर के पास हम जो भी चीज मांगेंगे वो हमें मिल जाएगी, और मैं हमेशा इस संसार की जो वर्ल्डली थिंग्स है वो हमेशा मांगता था, और उस चीजों को मैं प्रार्थना में ढूंढता था, या फिर उस संसार की चीजों के लिए मैं परमेश्वर का द्वार हमेशा ठकठकता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि प्रभु ये जो वचन है मत्ती 7:7, ये प्रभु यीशु का वचन है, और प्रभु यीशु के हृदय में हमेशा स्वर्ग की बातें, हमेशा परमेश्वर पिता की बातें, या हमेशा धार्मिकता और नीतिमत्व की बातें रहती थी, और पवित्रता की बातें थी। तो प्रभु यीशु हमें यहाँ पे उस बातों के बारे में बता रहा है, ना कि संसार की बातों में। अब मैंने जाना कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी प्रोफेशन से सिंगर है, तो वो आदमी के मन में हमेशा म्यूजिक, गाना, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो, उसके बारे में सोचता है। या फिर कोई आदमी अगर क्रिकेटर है, तो वो क्या सोचेगा कि हमेशा ग्राउंड या फिर पिच कैसा है, हार जीत, बैट बॉल, उसके बारे में ही सोचता है। और अगर हम किसी क्रिकेटर आदमी को कुछ किसी बारे में पूछेंगे, तो हमेशा उसका उत्तर जो रहेगा वो क्रिकेट के लैंग्वेज में रहेगा। तो इसी तरह प्रभु यीशु की जो वचने हैं वो हमें पवित्रता, नीतिमत्व, पवित्र आत्मा, स्वर्ग, किंगडम ऑफ गॉड और परमेश्वर की पिता, इसी संदर्भ में प्रभु यीशु की बातों को और वचनों को हमें समझना है और कोशिश करनी है। तो यही मैं इस वचन से समझा, और ब्रदर डैनी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने जो बताया उससे और थोड़ा आगे कुछ परमेश्वर ने मुझे कुछ समझाया। धन्यवाद। आमीन। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ एक बात मैं बात करना चाहता हूँ कि 21 में जब अबू ब्रदर शेयर किया एक ईमेल ब्रदर जैक का एल्डर्स के लिए सिस्टर रीना के डेट के लिए, समय इतना उससे इनकरेज हुआ। मैं और एक बार बोलूँ, जो ब्रदर सिस्टर नहीं अब तक देखे 21 में जो ब्रदर अबू शेयर किया ग्रुप में, वो ईमेल से के और जो यूट्यूब लिंक दिया ब्रदर मॉइस का,
जो कॉन्डक्ट ऐसे इतना टेम्पटेशन में वो कितना कैसे स्पेस दिया, कैसे लाइफ ये किया, लीड किया इसी समय लास्ट फ्यू वीक्स इतना इसमें टेम्पटेशन में। और एक चीज सिखाया जो ब्रदर महेश वहाँ पे जो प्राइड के बारे में बहुत कुछ बताया। दो इसमें मतलब दो पार्ट है लास्ट 2 वीक्स में शेयर किया। मैं उसी से भी ज्यादा एनकरेजमेंट हुआ और देखा जाए कितना प्राइड अभी तक भी चलेगा, अभी लॉकडाउन में चलेगा कितना प्राइड। सो अंडरलाइन प्राइड बोल के जो अलग अलग है। सो मैं इसको एनकरेज करूँ ब्रदर सिस्टर वो भी थोड़ा टाइम लेके थोड़ा सुनो कि वहाँ पे भी और बहुत सुना है और फिर रिफ्रेश होगा कि कितना प्राइड हम लोग है और हम लोग मांगते हैं हम हम्बल करिए प्रभु। सो नहीं हम लोग नहीं बोल पाए कि मैं प्राइड में हूँ इसलिए हम्बल करिए। इसलिए मेरा उससे पर्सनल मिला और जो एनकरेजमेंट मिला मेरा दिख रहा है मेरा जीवन में कितना प्राइड है, कितना एरिया में प्राइड है। और दूसरा चीज में अभी 2-3 दिन इतना बिजी हो गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हर समय मृत्यु का बारे में सुनते हैं, रीप बोल के जो जितना ग्रुप देखते हैं। मेरा पहले था इसे ठीक है, अभी देखते हैं वो कौन कौन लिखा है कौन पोस्ट में, अलग अलग ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वो देखा है कौन फ्रेंड क्या कमेंट किया रीप के बारे में ऐसे ही वो ऐसे ही बारे में। इसलिए बहुत 2-3 दिन मेरा टाइम बर्बाद हो गया। तो सोच रहे प्रभु इसी समय ब्रदर डैनी भी बोला और ब्रदर भी बोला जो कैसे मैं टाइम उपयोग करूं। इसलिए मैं बोलूं जो ये है तो बुरा बात है लेकिन मैं प्रार्थना में टाइम लगूंगा और उसका परिवार के लिए प्रेयर करूं। और वो फ्रेंड क्या लिखा है उसके बारे में, मृत्यु के बारे में, वो पढ़ाई के हर ग्रुप में क्या क्या लिखा है कौन फ्रेंड, इसी के बहुत टाइम नष्ट हो जाएगा आपका अगले दिनों में। सो सिस्टर ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि टाइम व्हाट्सएप में थोड़ा ये करके प्रार्थना में टाइम रहने से और ज्यादा आगे बढ़ूंगा हम लोग। थैंक यू। मैं भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए, आज के वचन के लिए और उसके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। बीते दिनों मेरे फैमिली में कोविड के कारण बहुत ही एक कठिन परिस्थिति से जा रहे थे। आप सब लोगों ने प्रार्थना किया, आप सब लोग को धन्यवाद और प्रभु का भी धन्यवाद। परिस्थिति ऐसा था कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी ऐसा समय नहीं था और मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा था, तो भी प्रभु वहाँ पर मदद किया। एक पिता के समान वहाँ पर हो के सबको चंगाई दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस टाइम पे उस कठिन परिस्थिति में एक वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत किया जिसके द्वारा मैं समझी रही, उसको पढ़ना चाहती हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 25 और 26 वचन में लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, परंतु मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे बल और ताकत दिया कि जब दाऊद भी अपनी कठिन परिस्थिति में था, उस टाइम पे प्रभु को अपने सामने रखा और उस पर आशा लगाए रखा और प्रभु ने उसकी आशा को पूरा किया और प्रभु उस कठिन परिस्थिति में उसकी मदद किया। और ये वचन को मैं अपनी ढाल एक सहायक के रूप में देखी और सचमुच में परमेश्वर ने उस आशा को पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद जो प्रार्थना में उठाया। प्रभु ने अद्भुत रीति से चंगाई को दिया मेरी फैमिली को। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचनों के लिए। और खास तौर से पिछले हफ्ता जब भी बाइबल पढ़ रहा था, एक वचन मेरे हृदय में छू लिया कि मत्ती लूका का सुवर्तमान में 6वां अध्याय में 27 वचन, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे वैर करे उनका भला करो। ये पहले पार्ट में उसका ऊपर मैं मनन कर रहा था कि परंतु मैं तुझे बताता हूँ, जो सुनने वाला है ना, सुनने वालों के पास प्रभु यीशु ये बताना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है। बाइबल पूरा देखा गया तो सुनने वालों के ऊपर, जैसा प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, साले मंडल कलीसियाओं को बोलता है जिसको कान है वो सुनो बोल के। तो आज मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, प्रभु मैं आप जो बोलते हैं वो सारे चीज मैं सुनता क्या, नहीं तो चर्च में आना, देखभाल करना, जो कुछ अटेंडेंस सरकार देना है, इस प्रकार का जीवन बिताता हूँ, है ना। परमेश्वर मेरे लिए क्या बताया उस चीजों को मैं पालन कर रहा हूँ क्या। तो इस चीजों को जब मनन करने के समय में मत्ती के सुवर्तमान में 19 अध्याय में जैसा 21 वचन में एक रिच मैन के बारे में हम बताया गया कि शुरुआत में वो बताता है कि
परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करना मांगता है बोल के यीशु के पास आके बताता है। ये तो हम सब पढ़ा है। तभी प्रभु यीशु ने उसको कई आज्ञाओं को देता है, और तुम खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, झूठा नहीं बोलने का है, जैसा अपने माँ बाप को आदर करना है, जैसा इस प्रकार के कई चीजों को बताता है। जैसा वो बता रहा है कि ये तो मैं बचपन से मैं करते आ रहा हूँ बोल के। सही है, आजकल उस वचन को देखने के बाद मैं भी बचपन से बहुत सारे चीज मैं करके आ रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन प्रभु यीशु ने जो खास जो बताता है उसको मैं पालन करता हूँ क्या, उसको मैं सुनता हूँ क्या, उसको मैं करने के लिए प्रतिदिन मैं उस चीजों को ऊपर मनन करता हूँ क्या बोल के। जब 21 में इस प्रकार से बताता है कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। है ना, उसके पास सारे चीज था, लेकिन उसमें एक ही कमी था। यीशु ने एक ही बोला है, तुम जाओ अपने माल मत्ताए बेचो, कंगाल दे दो, फिर मेरे पीछे आ जाओ बोल के, है ना। सो उस बातों को वो सुनकर दुखित होते हुए पीछे चले गया, है ना। एक ही आज्ञा दिया है। शायद आज भी मेरे जीवन में ऐसा यीशु ने कई आज्ञाओं को दिया है, वो सब आज्ञाओं को मैं पालन करते होंगे। आखिर में कुछ मुझे बोलना चाहता हूँ। आजकल इन दिनों में कई चीजों को अपने मेरे गलतियों को बता रहे, किधर कितना मैं सेल्फिश है, कितना मैं प्राइड में चलता हूँ, कितना मैं ईगो में चल रहा हूँ, कितने अपने बातों को सामने रखने के लिए बार बार मैं आगे जाना चाहता हूँ, है ना। मेरी बातों को आप सुनना है, यही सही है। इस चीजों को मैं बार बार मैं दोहराता हूँ क्या, नहीं तो यीशु मसीह जैसा बोलता है, तुम हम्बल हो, नम्र हो, और इस प्रकार के बातों को मैं लेके आगे बढ़ता हूँ बोल के। तो इस चीजों में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह कार्य किया है, सीखने के लिए और समझने के लिए और यीशु के पीछे चलने के लिए, और उसके बातों को मैं ध्यान से सुनने के लिए तैयार होने के लिए एक कदम परमेश्वर का आत्मा मुझे सहायता किया है। आमीन।